तेरे कवन कवन गुण कहे कहे गावा। तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा वर्ण ना सकूं। तू ठाकुर पूज भगवाना। जे सौ चंदा उगवै सूरज चढ़े हजार। इते चानण होंदियां इते चानण होंदियां होर बिन होर अंधार। नानक गुरु न चेतनी मन अपने सुचेत। छुटै तिल पुआड़ ज्यों सुने अंदर खेत। खेतै अंदर छुटिया कहो नानक सौ नाथ। फड़िए फुलिए बकुड़े भी तन विच सुआर। श्लोक महला पहला। काल काती राजे का साई धर्म अंक कर उडरिया। कूड़ अमावस सच चंद्रमा दिसे नाही कहाँ चढ़िया। कूड़ अमावस सच चंद्रमा दिसे नाही कहाँ चढ़िया। हों भाड़ गुन्नी हुई अंधेरे राह न कोई। विच हउमे कर दुख रोई कहो नानक किन बिद गत होई। विच हउमे कर दुख रोई कहो नानक किन बिद गत होई। परम सम्मानयोग जुगो जुग अटल चवर छतर तख्त दे मालिक हाजरा हजूर सर्व कला भरपूर नाम बाणी के ओहित हरत अर्थ सवार देन वाले गरीब नवाज। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह तिन्हां दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सच बैठे गुरु प्यारे
ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਾਰਨਹਾਰੇ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ, ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆਏ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਰਵਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੇਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਛੱਡਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡਿਆ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਗੀ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾੜ ਕੇ ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪਹਾੜਾਂ ਕਾਲਾ ਪਾਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੰਬੇਰੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਸਨ, ਦੀਆਂ ਵਡੇਰੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਸਨ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਗੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਧ ਪੁੱਛਣ ਸੁਣ ਵਾਲਿਆ, ਕੌਣ ਸ਼ਕਤ ਤੁਮ ਇੱਥੇ ਲਿਆਏ? ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ? ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸੰਸਾਰ ਚੱਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਤੁਰਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਚੰਗੇਰਾ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਚ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘਰ-ਬਾਰ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਮਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਗੀ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲ ਕੇ ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਸੀਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹੋ। ਦੇਖੋ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਦੱਸਦੇ ਸੀ। ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਮਾਤ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਦੇਸੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਰਤਾ, ਕੀ ਹਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਧ ਸ਼ਬ ਬੈਠੇ ਪਾਰਵਤੀ, ਕੌਣ ਜਗਤ ਕੋ ਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ? ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਧਰਮੀ ਪੁਰਖ ਦੇ ਇਸ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੰਦਰਾਂ ਚ ਲੋਕ ਗਏ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ।
पाप ग्रसी पृथ्वी धौल खड़ा धर हेठ पुकारा। कहते भी धरती ते तां पाप वापरिया ते तुसीं धर्मी होण दा दावा करके, त्यागी होण दा दावा करके पहाड़ां दे विच आके लोक के बैठ गए। देखो मैं बेनती करा साध संगत, गुरु पातशाह ने जेड़े अपने फर्जां तो बाकी हुए लोग सी ना, उन्हां नूं बाह फड़ के समझाया, उस सजणों पहाड़ां दे विच बैठ के रब दी प्रार्थना ने, पहाड़ां दे विच बैठ के लोग छिप के बैठ के मन दे विषय विकार काबू विच नहीं आउंदे। जिम्मेवारियां तो भज के तू कहेगा कि मेरे विषय विकार काबू विच आ जाण, मैं कंट्रोल विच कर लवां, नहीं, क्योंकि बाणी दा वचन है, कुंवर तार गेरी के बस्तरा अपदा का मारिया गृह ते रस्ता। विपता दा मारिया घर छड्ड के तुरिया, गेरुए रंग के बस्तर पहन लिया, धर्मियां वाला भेद पा लिया, घर छड्डता, परिवार छड्डता, घर को नस गया भी घर ते छड्ड देना, घर विच रह के रब रब नहीं होता। कुंवर तार गेरी के बस्तरा अपदा का मारिया गृह ते रस्ता, देश छोड़ परदेसी ताया। घर छड्डिया, परदेसी हो गया, छड्ड दिता घर, परिवार छड्ड दिता। महाराज जी ने देश छोड़ परदेसी ताया ते लंबा समा बंदा घर छड्ड के बाहर रवे की भक्ति कर गया भाई। जदों वापस आ गए ते सुभाव विच कोई तब्दीली नहीं, सुभाव बदलिया नहीं, जिहो जिहा लैके गया सी उहो जिहा वापस आ गया। महाराज कहते देश छोड़ परदेसी ताया, पंच चंडाल नाले रह आया। जिन्हां पंजां तो डरदा घरों निकलिया सी, वो पंज फिर नाल ही तुरे फिरदे। वो पंज ने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਈਏ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਛੱਡ ਦਈਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਥੋੜੀ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਥਕੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ। ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਘਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਫੱਬਦੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ, मेरे घर में सफाई नहीं। जे मेरे घर में सफाई नहीं तो मैं खुद ये गल कहां कि मेरा घर चंगा नहीं ते सफाई नहीं, तो मैनू को बंदा सवाल करेगा कि घर में जो तू रहना ते सफाई किने करनी है। सवाल करेगा ना कि घर में तो तू रह रहा ते सफाई भी तो तू ही रखनी है ना। ये तो असि दुनिया बारे वो शब्द वरतते हैं कि दुनिया चंगी नहीं है, दुनिया माड़ी है, दुनिया दे विच करप्शन है, दुनिया च करप्ट है, इत्थे चंगे लोग नहीं है। पर सवाल का यह कि तू कितना चाहिए। जब कोई व्यक्ति किसी वाल उंगली करता ना, एक उंगली करता ते 3 उंगलियां वापस आउंदियां, मेरे वाल 3 वापस आउंदियां, कई दियां ने कुछ, क्योंकि तिन्ना दा मोह मत है। एक तां बेचारी कली रह गई, एक बंदा दूजियां वाल करदा, 3 मेरे वाल आ जांदियां, कहंदियां कि तेरे विच इहदे नालों 3 गुणा वध गुनाह, तू ज्यादा गुनाह कर। एक उंगली चुकण वालिया तैनूं 3 उंगली इधरों कह के इशारा करके दस रही कि तू इहदे नालों 3 गुणा ज्यादा पापी है, तू ओनूं कह रहा उंगली करके वो पापी है, पर 3 कहंदियां तू ओहदे नालों 3 गुणा वध के पापी है। खैर गरीब नवाज पातशाह जी ने उन्होंने समझाया कि घर छड्डण की लोड़ नहीं, पहाड़ां दी कुदरत च बैठण की लोड़ नहीं। सतगुरु महाराज सियालकोट पहुंच देंगे, पीर हमजा गौस नूं अपना हंकारी सुभाव छड्डण लई आखदे ने, क्रोधी गिरती त्यागण लई आखदे ने, अडंबर करने छड्डण लई आखदे ने। गुरमत दा उपदेश दे के महाराज करतारपुर की धरती ते वापस आउंदे ने। इत्थों तक आपां गल श्रवण कीता सी। ये दूसरी प्रचार फेरी की समाप्ति और तीसरी प्रचार फेरी का आज आप जिक्र करना है। उस तो बाद चौथी प्रचार फेरी जी सतगुरु महाराज करतारपुर तो नेड़े लोकल एरिए दे विच जाते सी, 200 मील पैंडा तय करते सी, 300 मील पैंडा तय करते सी, फिर वापस करतारपुर आ जाते सी। चौथी प्रचार फेरी आज आप जिक्र करांगे तीसरी प्रचार फेरी के महाराज किधर नूं गए, किनू किनू समझाया
उस सारा कासे दे विचों सानू की सीखण वास्ते मिलिया? जे महाराज ने उन्होंने कर्म कांडां ते चोट मारी है, उन्हां दियां जिन्नियां जो जो क्रियावां करदे सी उन्हां दा खंडन कीता मेरे पातशाह ने, खंडन करके मंडल दिता है। ते जे असीं उन्हां सिक्ख्यावां नूं पढ़दे हां, सुणदे हां, विचारदे हां, कदर करदे उहदा, फिर उहदा साडे जीवन विच की रोल है, ये भी आपां स्वै परचोल नाल करते जाना। आओ सारी संगत एक बारी गुरु फतेह नाल साथ करिए, कोई भी रसना गुरु फतेह तो वांझी ना रहे। इको बारी कहण के सरबत संगत गज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गरीब नवाज धन गुरु नानक साहब महाराज जी एक संसार के अंदर मनोरथ लैके तुरे। चार प्रचार फेरियां का यह मनोरथ सी कि दुनिया को सचखंड बनाना, दुनिया को बेगमपुरा बनाना। सत्यार की घाट घड़ी है गुरु नानक साहब महाराज जी ने। जो जपजी साहब की बाणी आप पढ़ते हैं ना, तो जपजी साहब की बाणी में पहला सवाल आता है, किम सत्यारा होई है? किम सत्यारा होई है, किम कूड़ा टुटा पाल। पाल का अर्थ है कंध। कूड़ की कंध किवें मेरे अंदरों टुटे, कूड़ का पर्दा किवें मेरे अंदरों दूर होवे, मैं किवें अपने मालिक के दर्शन करा ते किवें सत्यार बन सकता। सवाल बड़ा प्यारा है। इसे जपजी साहब की बाणी दे फिर जवाब भी दिता गया इस सवाल का। पहला आख्या किम सत्यारा होई है, किम कूड़ा टुटे पाल, किवें अंदरों कूड़ की कंध टुटे ते मैं किवें सत्यार बन सका, किवें सत्यार की मंजिल नूं प्राप्त कर। ते मेरे गरीब नवाज पातशाह जी ने जवाब भी दिता ना, क्यों भी आख्या जे को बुझे होवे सत्यार। साध संगत मेरे भैणा वीर बाणी जानते जरूर उच्ची आवाज में पढ़िया करो। जदों प्रमाण बोलिया जाता उच्ची आवाज में पढ़िया, जे को बुझे होवे सत्यार। देखो पहला आख्या किम सत्यारा होई है, किम कूड़े टुटे पाल, फिर आख्या जे को बुझे होवे सत्यार। जे कोई बुझ लवे, बुझण दा अर्थ की हुंदा? समझना। अपने पिंडां दे विच आम तौर ते शामां दे वक्त रात नूं अजकल नहीं पुरातन समय दे विच बुझारतां पाईआं जांदियां सी। लंबियां लंबियां बजुर्ग मातावां बैठ के कहानियां सुणाउंदियां सी, बातां सुणाउंदियां सी, साखियां सुणाउंदियां सी। बच्चे विरसे नाल जुड़े रहिंदे सी। बुझारतां पाईआं जांदियां सी बच्चे दा दिमाग बनाउण वास्ते, बच्चे दी नॉलेज विच वाधा करन वास्ते। ते जेहड़ी बुझारत सवाल दे रूप विच पाई जांदी सी, ओहदा बुझारत दा जवाब जिहने देना हुंदा सी ओहनूं कहंदे सी इहने बात नूं बुझ लिया, मेरी बात नूं बुझ लिया। ते बुझण दा अर्थ की हुंदा है? समझ लेना। महाराज कहते जिन्हें परमात्मा वाहिगुरू दे हुक्म नूं समझ लिया कि ओहदी रजा जिहड़ी है जन्म मरण दुख सुख सारा कुछ ओहदे भाणे, जिन्हें इस गल नूं समझ लिया, जिन्हें कर्म कांड त्याग दिते, जिन्हें समझ लिया कि बुत परस्ती करने नाल कोई प्राप्ति नहीं है, जिन्हें समझ लिया कि मैं परम पखंड अडंबर दिखावे तीर्थ इशनान इत्यादि कुछ करने की लोड़ नहीं है, सगों तीर्थ की है, तीर्थ नहावन जाऊं तीर्थ नाम। जिन्हों आ समझ ते मेरे बादशाह जी ने कितना बड़ा एक यो कह सकते भी मनोरथ, कितना बड़ा मनोरथ लेके तुरे। प्रचार पीढ़ियां का मनोरथ ही है कि सत्यार की घाट घटनी। ते महाराज कहते पहला सवाल किया कि किवें बनना सत्यार, फिर दस्या कि बुझ लेना समझ लेना, रबी हुक्म समझ के जीवन जीवना आ है सत्यार की निशानी। जे को बुझे होवे सत्यार। असि सारे ने बुझना है, समझना है, पढ़ना है, विचारना है, ज्ञान हासिल करना। मेरे गरीब नवाज पातशाह जी 1518 ईस्वी नूं करतारपुर साहब की धरती तो माझे बैठे होंगे कसूर के रस्ते जाते हुए गरीब नवाज पातशाह पाकपटन पहुंचते।
कि बाबा फरीद साहब जी की धरती है। बाबा फरीद साहब जी की बाणी गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच ध्यान नाल समझियो, जिहड़े श्लोक असीं पढ़दे जदों बाबा फरीद साहब जी की बाणी आउंदी ते बड़ी ठेठ पंजाबी दे विच फरीदा जाओ तैं मार मुखियां तिन्हां ना मारे कौम अपने घर जाइए पैर तिन्हां दे चुम। ये बाबा फरीद साहब जी की इन्नी प्यारी मिठी सुर दे विच बोली हुई पंजाबी बोली सी जिन्हों लोग घरां दे विच मुहावरियां दे तौर ते वरतदे सी। अज तां पंजाबी बोली की जगह भी होर बोलियां ने रह गई। बाबा फरीद साहब जी की इन्नी प्यारी मिठी माखियों मिठी बोली पंजाबी बोली जिहड़ी आवाज में कितनी प्यारी निकलती उस बात में। जदों फरीद साहब कहते ना ऊंचे चढ़ के देखिया तां घर घर घेरा अब असीं मुहावरियां दे तौर ते ये शब्द जिहड़े गुरबाणी दे पढ़दे एक घर विच खड़े होनी ते जदों दूजे घर विच भी होनी ते जदों तीजे घर विच भी होनी कहंदे कि लै पिया तां घर घेरा हर घर विच ये तां गुरबाणी नूं साडे पुरखे जिहड़े सी ना मुहावरियां दे रूप विच वरतदे सी। नानक दुखिया सब संसार वो तो मुहावरे खत्म हो गए, हुण तो पढ़दा ही कोई नहीं। मुहावरे भी हमेशा उस बोली दे बोले जाते हैं जिस बोली का तुसीं चिंतन करदे हो। जे बोली का चिंतन नहीं ना तो मुहावरे किसी होर बोली दे हो। अज विद्वान स्टेजां ते बैठ के ना अंग्रेजी विद्वानां दी भाषा दे विच अंग्रेजी राइटरां दे द्वारा लिखे हुए थाट जिहड़े ने जिहड़े उन्हां द्वारा लिखियां कहावतां ने उन्हां दा बड़ा विज्ञान करदे ने लंबा चौड़ा। पर किहड़े फरीद साहब जी की बाणी पढ़ के 112 श्लोक बाबा फरीद साहब जी ने अपनी रचना तो उच्चारे ने। बाकी 18 श्लोक टोटल 130 ने। बाकी 18 श्लोक पहले ते तीजे ते चौथे ते पंजवें पातशाह जी ने जिहड़े बाबा फरीद साहब के श्लोकां विच ऐड कीते। टोटल 130 चार शब्द ने बाबा फरीद साहब जी दे नाम। ये फरीद साहब जी ने आख्या ना कि दिलों मोहब्बत जिन सही सच जिहदा गुरु नाल दिलों प्यार है, जिहदा अंदरों प्यार है, जिहदी अंदरों मोहब्बत है, जिहड़ा अंदरों मोहब्बत करदा अपने गुरु नाल प्यार करदा कहते वही सच्चा है। जिन मन होर मुख होर से काटे कच्चे वो कच्चे ने जिन्हां दे मन विच कुछ होर होवे ते मुख ते कुछ होर होवे। जेड़े जबान तो रब रब करदे होण पर हिरदे दे विच करप्शन होवे, हिरदे च कपट होवे, महाराज कई लोग कच्चे ने। जेड़े दिलों प्यार करदे अपने मालिक नाल गरीब नवाज कहंदे वो सच्चे ने। कौन कह रहा है? बाबा फरीद साहब। चार शब्द तो मैं अर्ज कर लगा गुरु नानक साहब महाराज जब पाकपटन पहुंचते हैं कि बाबा फरीद साहब जी की 11वीं थाने गद्दी जी चलती सी, उसकी 11वीं थान की गद्दी पे बैठे थे शेख इब्राहिम, जिन्होंने शेख इब्राहिम भी कहते हैं। शेख इब्राहिम के कोल गुरु नानक साहब महाराज पहुंचे ते शेख इब्राहिम के कोल बाबा फरीद साहब जी की यह रचना जिहड़ी गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच दर्ज है। मैं बेनती करा जिन्नी भगत साहबाना की बाणी, क्योंकि मैं संक्षेप बेनती करता ना, ये इतिहास कोई 10 दिनों के सुनाने वाला नहीं है। ये तो बड़ा भाजे नाल ठीक कर रहे हैं। संक्षेप मेन पॉइंट तुहाडे नाल साझे कीते जाण। गुरु नानक साहब महाराज जदों प्रचार फेरियां करते हैं तो प्रचार फेरियां के दौरान उन्होंने भगत साहबाना की बाणी इकत्र की। भगतां की बाणी जी गुरु ग्रंथ साहब जी ने दर्ज है, 15 भगतां की बाणी दर्ज है। यह बाणी गुरु नानक साहब जी ने प्रचार फेरियां के दौरान ही इकत्र की थी। जिथों भी बाणी मिलती सी पोथी में साहब लेते सी। अगे जाकर मैं जिक्र करांगा इस पोथी साहब का। बाबा फरीद साहब जी की बाणी शेख इब्राहिम के कोलों जिहड़ी गुरु नानक साहब महाराज जी ने प्राप्त की थी। इथों गरीब नवाज सच्चा पातशाह महाराज अगे जाते हैं तलंबा पिंड। तलंबे पिंड दे विच रहण वाला सी एक सज्जण नामी व्यक्ति। संक्षेप बेनती करदा जावां क्योंकि 2 प्रचार फेरियां का जब जिक्र करदा।
सज्जन के कोल जाते ने, ਇਹਦਾ नाम ਜਿਹੜਾ असली नाम ਸੀ, ਇਹਦਾ नाम ਸੀ शेख सज्जन। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਕਰਮ ਵੇਖੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕ ਸੱਜਣ ਆਖਣ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆ ਉਦੋਂ ਸੱਜਣ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅਸਲੀ ਸੱਜਣ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਅਸਲੀ ਸੱਜਣ ਬਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਬੁਰਕਾ ਪਾਇਆ, ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਰਿਹਾ, ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕੋਈ 15 ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਉਹ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕ ਤੁਰ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸੱਜਣ ਨਾਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਮਾਲ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਗਹਿਣੇ ਜ਼ੇਵਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਰੀਬੀ ਵਸਤੂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਨ ਮਾਲ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨੂਰਾਨੀ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕ ਕੇ, ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੇ ਜਾਗਦਾ ਹੋਇਆ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਧਨਾੜ ਤੇ ਵੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗਾਹਕ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਤੱਕ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੱਜਣ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਸੱਜਣ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਕਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸੱਜਣਾ ਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਨਸੁਖ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਮਨਸੁਖ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤੇ ਮਨ ਸੁਖ ਹੈ, ਕਦੀ ਮਨ ਦਾ ਸੁਖ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂ ਮਨ ਸੁਖ ਨਾਮ ਹੀ ਖਵਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਹੀ ਮਨ ਸੁਖ ਹੈ, ਸੁਖ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਖ ਮਿਲਿਆ, ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨ ਸੁਖ ਹੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਮਨ ਦਾ ਸੁਖ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ। ਸੱਜਣ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੱਜਣ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਸੱਜਣ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਕੰਮ ਵੀ ਸੱਜਣਾ ਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਸੱਜਣ। ਸੱਜਣ ਦੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਫਕੀਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੱਜਣਾ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾਮ ਹੀ ਸੱਜਣ ਰਖਵਾਇਆ ਪਰ ਕੰਮ ਸੱਜਣਾ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਕਾਹਲਾ ਪਿਆ ਸੱਜਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਛਕਦੇ ਆ। ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੀਲੀ ਵਸਤੂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਖਾਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟ ਲਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਮਨਸਾ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ, ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫੇਰ ਛਕਾਂਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੇਟ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਅਸੀਲਾ ਭੋਜਨ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਪਏ ਹੋਣ ਕੋਈ ਕਲੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਸਾਸਤ ਇਸ ਗੱਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜਣ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜਣ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਰੋ ਯਾਦ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਬੈਠ ਇੱਥੇ। ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੱਜਣ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਰਬਾਬ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਛੇੜੋ।
गुरु नानक साहब महाराज जी ने शब्द गायन किया, उजल कहना चिलकना भोटम कालड़ी मस। उजल का अर्थ था पवित्र, लिशकदार, बड़ा चमकदा, साफ सुथरा। कहना कहना धात का नाम है, जिवें अपने घरां दे विच कहना दे भांडे हुंदे सी, छन्ने हुंदे सी, थालियां हुंदियां सी, परातां हुंदियां सी, इन्हां दे बर्तन हुंदे सी, कह धात। महाराज ने कितनी प्यारी एग्जाम्पल दी है बाणी दे विच, कितनी प्यारी उदाहरण दी है कि सज्जन दा अंदर की तस्वीर सज्जन के सामने जाके पेश कर दी। ये उन्हें जाके आख्या कोई बंदे वड़दा, ये उन्हें आख्या सज्जन को कहने का भांडा वेख्या। पहला शब्द गायन किया महाराज ने, उजल कहना चिलकना घोटम कालड़ी बस, धोतियां झूठ ना उतरे, जे 100 धोवां तिस सज्जन से ही नाल में चलदियां नाल चलन, जिथे लेखा मंगीए तिथे खड़े दिसा। शब्द गायन शब्द की समाप्ति हुई। सज्जन ने अजे भी अखां बंद कीतियां। सज्जन नूं सहजे सहजे बाणी सुर विच गाई जा रही सी, राग विच गाई जा रही सी। जदों शब्द गायन होया, सज्जन दा शरीर पिघल गया, सज्जन अंदरों पिघलिया, तरेलियां आ रही, अंदर के पाप शब्द राही उजागर हो रहे हैं, अंदर की स्वयं प्रचोड़ कर रहे सज्जन। महाराज कहते सज्जन इस शब्द का भाव अर्थ ध्यान ना समझना। सज्जन बैठा चौकड़ी लाके महाराज देखे, गरीब नवाज कहते सज्जन कदे कहने का भांडा वेख्या, कहता महाराज वेख्या। कहते किहो जिहा? सज्जन कहता महाराज बाहरों बड़ा लिशकदा है, पर जे कहने भांडे नाल हाथ घसाइए तो उहदे विचों कालख निकल आउंदी है। कहते तजर्बा करके वेखना, घर दे विच काल जे साडे कहने दे भांडे होण ना, उहनां नाल हाथ घसा के वेखना, इस तरह कालख। दो त्योहार इहो ਜਿਹੇ ने जिन्हां समय ते प्रातन साडीआं बजुर्ग मातावां कहने दे भांडे ला के भी लस्सी नाल साफ करदियां सी, लिशक जांदे सी, लिशकदे सी। धोपे पए होए निगाह नाल बंदा तक नहीं सी सकदा, इन्नी लिशक मारदे सी। पर लिशका मारते हुए भी कहने भांडे विच जिहड़ी कालख है कदी निकलदी नहीं। लिशका मारदा जरूर है पर उहदे विच कालख हुंदी है। महाराज कहते कहने का भांडा वेख्या, कहता महाराज किहो जिहा? कहता महाराज लिशका बहुत मारदा, पर जदों हाथ घसाइए उहदे ते उहदे विचों कालख निकलदी, कालख लगदी। महाराज कहते सज्जन तेरा पहनावा भी बड़िया लिशका मारदा है, तेरा बाहरी स्वरूप जेड़ा ना बड़िया लिशका मारदा है, तेरा चिट्टा चोला बड़िया लिशका मारदा है, तेरे पत्थर बड़े लिशका मारदे। पर किते ना किते कहे दे भांडे वर्गा तू अंदरों बणिया। सज्जन दे जेड़े करप्ट सी ना सामने आउण लगे, बाहर आउण लगियां गल, हाथ कंबण लगे, महाराज दे खड़ा हाथ कंब रहा, सुनी जा रहा, होर कुछ सुन की इच्छा रख रहे। महाराज सारा कुछ बयान कर दे, अंदर एक मन के विरती चल रही कि सच्चा पातशाह सारा कुछ बयान कर दे, ताकि मेरे जिहड़े पाप ने इन्हां तो मेरा छुटकारा हो जाए। गरीब नवाज कहते कि कहे दे भांडे नूं धोई जाओ, 100 बारी धोई जाओ, धोतियां झूठ ना उतर। जे 100 धोवां तिस, इहनूं 100 बारी भी धो लओ, इहदी अंदर की कालख नहीं खत्म। सज्जन इवें तो चिट्टे वस्त्र पहनता है, शरीर को धोई जाता है, शरीर को साफ करी जाता है, मल मल के धोई जाता, पर अंदर की कालख तेरी दूर नहीं होती। सज्जन को बड़ी प्यारी व्याख्या करके सुनाई महाराज। मैं रात में बेनती की सी, सज्जन नितनेमी नहीं सी, सज्जन बाणी पढ़ने वाला नहीं सी, सज्जन खंड पाठ सुनने वाला नहीं सी, सज्जन ने कोई घर में सहज पाठ नहीं सी करवाया, सज्जन ने कभी सुखमनी साहब नहीं सी पढ़िया, सज्जन को गुरु साहब ने शब्द सुनाया, शब्द की व्याख्या करके सुनाई, सज्जन ने स्वयं पड़चोल की भी वाकई तुम को कर गई। पता सानू ही लगता सारे बाणी, सानू भी समझ लगती है बाणी, पर असीं अपने को छड्डणे नहीं चाहते, माफ कर। अग्नि को की गल बाणी विच लिखिया, झूठ ना बोल पांडे, सारी संगत बोले झूठ ना बोल पांडे सच कहिए। ਇਹਦੇ अर्थ करने की लोड़ है,
कि महाराज की बाणी कहती कि चतरा खवाउण वालिया, सियाणा खवाउण वालिया, झूठ बोलो सासत, झूठ ना बोल। की बोलिए महाराज? कहते सच बोल, झूठ ना बोल पांडे, सच कहिए। ते महाराज जी ने आ शब्द बाणी दे विच किहा है कि इहदे विच हुण औखी तां गल कोई नहीं है, सानू ही समझ लगदी है सारिਆਂ ਨੂੰ, पर समझदे होए भी ਅਸੀਂ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ नहीं है। सदके जाइए, मैं कहना आज तक सज्जन नूं जिहड़े ठग कहंदे ने ना, उन्हां नूं अपने शब्द बदल लेने चाहिए ने। सज्जन ठग नहीं रहा, सज्जन गुरु दा सिख बन गया। इक्के शब्द नाल गुरबाणी के भी वचन आया, किनका एक जिस जी बसावे ताकि महिमा गनी ना। ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਕਾ ਮਾਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਸਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਸਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਲਟਾ, ਜੀਵਨ ਪਲਟ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੁੜੀਆਰ ਤੋਂ ਸਤਿਆਰ ਬਣ ਗਏ, ਝੂਠਿਆਂ ਤੋਂ ਸੱਚੇ ਬਣ ਗਏ, ਬੁਰਿਆਂ ਤੋਂ ਭਲੇ ਬਣ ਗਏ, ਮਾੜਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਬਣ ਗਏ। ਜੇ ਉਹ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਣਕਾ ਪਾਪਣ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਗਣਕਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ आजामल पापी जग जाने निमक माही निस्तारा, नानक कैद चेत चिंतामन तय भी उतरे पार। महाराज जी ने तेरा क्यों नहीं पार उतारा हो सकता जे अजामल वर्गे पापी उतार सकते थे? तू क्यों नहीं अपना मालिक? तू क्यों नहीं समझदा राजा? तू क्यों नहीं छड़दा कर्मा? तू क्यों नहीं छड़दा बुरे कर्मा? अजामल वर्गी, गणका वर्गी पापण जी एक रब रब कहीं तार सकती है, जीवन सुधार सकती है, माड़े तो जीवन चंगा बना सकती है। तू क्यों नहीं बना सकता? सज्जन उपदेश देता है, सज्जन की साखी सुन लैनी बड़ी स्वादली लगती है। ध्यान ना सुनियो, जदों गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने 4 साहिबजादियां दा शहीदी साका सुनते हैं ना, बड़ा स्वादला लगता कि बल्ले 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 मेरी कौम में जेडे ने योधे पैदा होए। पर जे अजय साकियां दे विचों सानू आप नूं गुजरना पै जावे ना, फिर असीं फेल हो जाते, फेल हो जाते। अजय साकियां दे विचों साडे ते कोई विपता पै जावे, साडे ते कोई मुश्किल आ जावे, साडे कोल इन्नी हिम्मत ते इन्नी ताकत नहीं उस मुश्किल दे नाल असीं टकरा जाईए। असीं डरदे हां, असीं तां ही आखदे हां महाराज सुख रखे, कोई मुश्किल ना ते मुश्किलों का नाम संघर्ष का, जिंदगी का दूजा नाम संघर्ष है, जिंदगी का दूजा नाम मुश्किल। मुश्किल मर्दा ते पैंदियां ने ते मर्द मुश्किलों के नाल इन्हां संघर्ष के नाल टकरा जाते। मर्द अपना आपा वार के दुनिया वालियां नूं सच दा मार्ग दिखा जाते हैं, अपना आपा वार जाते हैं। खैर मैं जिहड़ी बेनती कर रहा सी, सज्जन महाराज ने बड़ा कीमती उपदेश दिता। अकल के सज्जन बुराइयां त्याग दे, तू जेड़े काम करदा है ना, ये मनुखता रब दी बनाई हुई कायनात दे नाल तू बड़ा बड़ा धोखा कर रहा, बड़ा बड़ा करप्ट कर रहा, धर्म दा तू बाणा पाया। मैं तो बेनती करता हूं ना, उस वक्त एक सज्जन सी जिन्हों गुरु नानक पातशाह जी ने जाके समझाया। अज तक तुसीं 10 किलोमीटर तुर के चलोगे कि सज्जन बैठा मिलेगा, वो शेख सज्जन मिलेगा। अज पंजाब का 12,500 पिंड है, 29-30,000 सज्जन मिले ने, बैठ के थोनों अपने डेरे बना के बैठे। गुरु नानक की बाणी की गल नहीं है, सज्जना की वध गल चलती है। उन्हां लोकां दी वध गल चलती है जिहड़े अंदरों कुछ होर ने ते बाहरों कुछ। दिल काती गुड़ बात, गुड़ की हुंदा मीठा होंदा, काती कहते ने कैंची नूं। अंदर बंदे ने मेरे काबू में आवे ते मैं कैंची वांगू काट के सुट दे, ते ज़बान तो की कहंदा आओ जी वेलकम जी आए, असीं तां तुहाडी उडीक कर रहे सी। तुसीं चाह लाओगे, पानी लाओगे, रोटी खाओगे, प्रशादा छकोगे, की लाओगे दसो? ये की है? मिठी बोली। इस मिठी बोली दे नाल उहने जिहड़ा बैठ गया, काबू आ गया, कैंची वांगू कट के रख देना, जिवें दर्जी कपड़े नूं कटदा है कैंची दे नाल। इहनूं कहंदे बाबा फरीद साहब दिल काती गुड़ बात। शब्द गुड़ वर्गे मिठे है, दिल विच कैंची
चल रही है। फिर की है कहते बाहर दिसे चानना दिल अंधियारी रात, बाहरों चानने के अंदर की है रात बनी, अंधेरा होया। सतगुरु महाराज सज्जन को बड़े सुंदर तरीके नाल उपदेश करके इथों अगे रवाना हो। हाजियां दे नाल बढ़दा, हाजियां दे बोले फिरदे, किधर चले हो अज करदा किते मक्के। मक्का एक शहर का नाम है, अरब का शहर है मक्का। मक्के दे विच एक काबा है, मुसलमान वीरां दी धार्मिक जगह जिथे वो कहते कि संत सुद लगा होया कोल चुमण वास्ते काला पत्थर लगा चुमते ने कोल कहते हजरत मुहम्मद साहब के हाथ लगे ओदियां 7 परिक्रमा करते ने काबे दी उस जगह दी। ਉਹਨੂੰ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ 4 परिक्रमा ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ 7 परिक्रमा ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਜ ਕਰਕੇ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਜੀ ਹੈ ਹਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਬਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣੇਗਾ। ਹਾਜੀਆਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੌੜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਧਾਰੇ ਦਰਬਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਫਿਰ ਮੱਕੇ ਗਿਆ, ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਧਾਰੇ ਬਰਵਾਰੀ ਆਸਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਰ ਸੀ। ਕਿਤਾਬ ਕਸ਼ ਬਾਣੀ ਵਾਲੀ ਪੋਥੀ ਵੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਕ ਪਟਨ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਲਈ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਆਸਾ ਹੱਥ ਕਿਤਾਬ ਕਸ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਗਏ। ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ? ਅਰਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਮੱਕੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੱਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੱਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੱਜ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੰਦਰ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਤੁਗਲਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਕੁਤਬਦੀਨ ਐਬਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਲੋਧੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਮੰਦਰ ਬਣਵਾਏ ਗਏ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਮੰਦਰ ਬਣਵਾਏ ਗਏ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸਲਾਮੀ ਲੋਕ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਾਬੇ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਚੱਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਭਾਗਾ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਭਾਗਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਰਸਤੇ 'ਚ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਰਦਾਰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜਾਣੀ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਤਾ ਆ ਜਾਣੀ, ਝੂਠ ਸੱਚ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਵੇ। ਸੱਚੀ ਆਏ ਯਾਤਰਾ ਕਾਬੇ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਸੱਚੀ ਯਾਤਰਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਤੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੀ ਹੱਜ ਦਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਾਬੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪੈਰ ਕਰਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਬੜਾ ਨਿਵੇਕਲਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਅਰਬ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੜ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਨਿਡਰਤਾ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ
महाराज ने बोल बोले, उन्होंने दसिया, उन्होंने समझाया भी तुसीं जो कर रहे हो ठीक नहीं कर रहे। समझाया कि नहीं, पैर काबे वाल कर रहे। महाराज लम्मे पै गए। उस वक्त जेड़े हाजी सन भजे आए, दौड़े आए, एक आया, दो आए, चार आए, 10 आए, 50 आए, इकट्ठे हो गए लोग सारे। कहते काबर है। महाराज उठा रहे उठे नहीं। गुरु साहब देखते थे कि हम 10 इकट्ठे हो गए, 50 इकट्ठे हो जाए, 100 इकट्ठा हो जाए, फिर गल शुरू करेंगे। जेड़े विच बहुत बड़े घरां चौधरी हुंदे ने ना, जेड़े बड़े अपने आप को सियाणे खवाउण वाले, एक आदि ने आके महाराज ने लत मारी, उठो इत्थे तुसीं काबर लोग की कर रहे हो, पैर कीते रब दे खुदा दे घर वाल तुसीं पैर करके गए। भाई उदास जी ने इस गल का जिक्र किया, बकायदा जिक्र किया उन्होंने अपनी पौड़ी में। जीवन बारी लत दी महाराज गुरु नानक साहब जी को आके अपनी लत मारी है, उठो तुसीं काफर लोग हो, खुदा दे घर वाल पैर करके गए। महाराज उठे, कहते इतना बड़ा कट क्यों कटे हो? कहते तुहानू पता नहीं है तुसीं खुदा दे घर वाले पैर करके गए हो, तुसीं बड़ा बड़ा गुनाह कीता। महाराज फिर लम्मे पै गए। लम्मे पै हुए खुदा कह लगे, इहो करो जिस पासे खुदा दा घर नहीं है, मेरे पैर पकड़ के उस पासे नूं कर दो। पहली गल दे विच निरुत्तर हो गए कि जिस पासे काबा नहीं है, जिस पासे खुदा दा घर नहीं है, मेरे पैर फड़ के उधर नूं कर दो। बस इन्नी गल महाराज ने कही। सुनदिया सार सारे की सुन विच हलचल मच गई कि खुदा दा घर हुण किहड़े पासे आ कि इधर खुदा नहीं रहिंदा। जे ते कहंदे कि इधर नूं पैर कर दो, इधर खुदा दे घर नहीं है, इधर खुदा नहीं रहिंदा, फिर तां इउं आख्या जाना सी कि खुदा दा जिहड़ा काबे विच रहिंदा फिर ते छोटा जिहा जिहड़ा जिहा खुदा है। ते जे कहंदे कि सारे पासे खुदा है, ते फिर अपने सवाल दा जवाब खुद आप दे के शर्मिंदे होना पैंदा सी। महाराज कहते भलिओ, जिस रब नूं तुसीं काबे दे विच कैद करके बैठे हो, मुसलमान वीर खुदा कहते ने, अल्लाह कहते ते उसे अल्लाह दे नाम ते जेड़े हाजी लोग जांदे सी उत्थे ऊंट दी बलि दिंदे सी। ये हिंदू मत विच भी सी इदां दा ते इस्लामी मत विच भी इदां दा सी। ऊंट दी बलि दिंदे सी, बकरे चढ़ाए जाते सी ते नाल वो कलमे पढ़दे सी, नाल कलमे पढ़ के ते बकरा चढ़ा दिंदे सी, ऊंट चढ़ा दिंदे सी। फिर वो एक परिक्रमा जी दोबारा फिर करते सी। गुरु साहब ने ना बाणी च पता की आख्या, मन कर मक्का किबला कर दे। वेख तेरी हज कितनी सोहनी हुंदी है, किवें तैनू उस अरब दे मुल्क विच जाण दी जरूरत नहीं है। मन कर मक्का किबला कर दे ही, अपनी देही नूं काबा बना ले ते मन नूं मक्का। देख तेरी जाबला सब ते जेड़े लोग उथे जाण वाले ने ना हजारां तरह के कर्म कांड, जिवें आपां जिक्र कीता सी ना, एक भौ लथी नातियां दोए भात चढ़िए और बाहर धोती तुमड़ी, तुमड़ी कहते हैं तुम्मा। आम तौर पर पशुओं के वास्ते चार पाया जाता तुम्बे का, बड़ी लाभदायक दवाई होती है तुम्बे। ते तुम्बे दे विच उड़तन बड़ी होती है, तुम्बा जहर वर्गा कौड़ा होता, जुबान पे रख नहीं सकता बंदा, बहुत कौड़ा है। कहते बाहर धोती तुमड़ी, अंदर विष निकोर, विष का जहर। बाहर तुम्बे नूं कोई धोई जावे, साफ करी जावे, साफ कर लवे। इथों तक कि बंदा खंड में सुट देवे, 10 दिन बाद कढ़ लेवे कि तुम्बा मिठा हो गया होगा, पर तुम्बा अपनी कौड़ापन छड्डदा। सतगुरु कहते तुम्बे वर्गा है, तुम अंदरों तुम्बे वर्गा, बाहर होती तुमड़ी, अंदर विष निकोर, साध भले अणदातियां, चोर से चोरा चोर। साध कौन है? जिन्हें मन नूं साधिया। साध कौन है? जिहड़ा गुरु दे वचनां नूं जीवन में फॉलो करन लग पिया, जिन्हें मन साध लिया, मन साधे सिद्ध होए, जिन्हें मन नूं साध लिया, जिन्हें मन नूं सवार लिया, ओनू तीर्थां वाल भी भजन की लोड़ नहीं, बाकी की यात्रा वाल भजन की लोड़ नहीं, वो तो असली हाजी बन गया।
महाराज कहते इन्ने कर्म कांड कर रहे तुसी, पशुओं की बलि दी जा रही है, नाले तुसी कहते हो खुदा का घर है, नाले कहते हो रब का घर है, नाले अल्लाह का घर बनाया, नाले तुसी इत्थे कितना कहानी मचाया हुआ है कि तुहाडा अल्लाह इन्हां दी बलि मंगदा है, तुहाडा खुदा कहंदा कि इन्हां दी बलि दिओ। यही गल एक वक्त कबीर साहब जी ने कही सी, जो सब में एक खुदाए कहत है तो क्यों मुर्गी मारे। फिर तुसी इहनूं मुर्गी नूं ज़िबा करके कहंदे अल्लाह नूं भेंट कर, खानी ते आप है, सीधा कहो कि आप खानी है, एवें अल्लाह दा क्यों नाम वरतदे हो। एक पासे कहंदे हो अल्लाह सारियां विच है ते जेहड़ी मुर्गी नूं ज़िबा कर रहे हो अल्लाह इहदे विच भी हैगा, फिर इहनूं ज़िबा क्यों कर रहे हो, क्यों मार रहे हो। जो सब में एक खुदाए कहत है तो क्यों मुर्गी मार। इदा दी गल गुरु नानक साहब महाराज ने मक्के की यात्रा करने वाले हाजियां महाराज ने आख्या कि तुसीं आ खून दे प्रणाले बगा रहे हो, नाले कहंदे अल्लाह नूं असीं मिलण वास्ते आए हां, ये रब दा घर है, मेरे पैर उस पासे नूं कर दिओ जिधर अल्लाह नहीं है, खुदा नहीं है। हैरान होए ने, सोचण लगे कि हुण की आखीए। फिर महाराज ने बड़े खुले शब्दों में समझाया, कहने लगे तुसी कहने हो ये अल्लाह का घर है, सारा संसार अल्लाह का घर है, सारी दुनिया खुदा का घर है, क्योंकि बाबे की बाणी में आप पढ़ते हैं ना, ये जग सच्चे की है कोठड़ी। साडी कोठड़ी जी है ना, असं तो कोठी बनाई होगी, किसी कहने सारे पिंड तो बड़ी वड्डी है, बड़ी वड्डी 3 मंजिली बनाई, अद्धा किला जगह बढ़ चुकी है, बड़िया खुलियां पार्क बनिया ने, बड़ा सोहना प्रबंध बने हैं, बड़े सोहने कमरे बने हैं, बेडरूम है। ये साडी 3 मंजिली बनी होवे ते असं सारे पिंड को वक्त पा देते हैं कि साडी कोठी नाल की कोठी किसी दी नहीं, साडी नाल बनी हो ना, रिश्तेदारां दी बनी होवे ते ओदा ही हंकार करी जाते, लै साडे रिश्तेदारां ने कमाल कीती पई। बंदा पुछना भी नहीं चाहता, बदो बदी एवें दसी जाऊगा बंदा, जेड़ा सुनने वाला ना वो बोर होया तो तेरियां गल्लां तो मैं पहले बोर हां, तू क्यों मैनूं दस रहा। बंदा धक्के नाल दसी जांदा, ओए साडे रिश्तेदार बड़े तगड़े, उन्हां ते 3-3 मंजिलियां कोठियां बनाईयां, चौहां भरावां दीयां इकट्ठियां कोठियां, दसो हुण की करिए। जे वक-वक होंदियां तो फिर की होना सी। खैर एक बेनती कर लगा सी, बंदे ने छोटा जिहा घर बनाया, छोटा जिहा घर बनाया ते छोटे जिहे घर दा ही बड़ा वड्डा मान पई जांदा है। पर गुरु नानक साहब कहते जगत सारा ही सच्चे दी बोलो जी कोठड़ी है, ये जग सच्चे की है कोठड़ी, ते फिर वो कितने रहता सच्चा, सच्चे का विचवास। ये जगत कोठड़ी है, सच्चे का वास भी इत्थे है, वो कोठड़ी तो बाहर नहीं रहता। हुण बंदा सोहनी कोठी बना के आके मैं कोठी ते रहना निशान पाऊंगा बाहर जाके, लोग कहते नहीं नहीं तू पैसा दे, सोहनी कोठी बना इस घर रहे। रब ने संसार की सिरजना की है, इहनूं साजिया है, इहनूं बनाया है और बना के इहदे विच आप वसिया। गुरबाणी का शब्द पढ़ते हैं करता पुरख, करता का अर्थ का क्रिएटर, बनाउण वाला, साजण वाला, जिन्हें यह सृष्टि साजी है उन्होंने करता आख्या। पुरख दा है, करता पुरख दा पूरा इस शब्द का अर्थ है सब कुछ बनाउण वाला ते सब कुछ बना के उहदे विच आप वसिया हो। ये गल महाराज ने उस थां ते काबे दे विच खड़ के ये गल कही, मक्के दी धरती ते महाराज कहण लगे जेड़ा खुदा है ओदा सारा संसार साजिया ते वो सारे संसार विच रहिंदा। ये उपदेश करके अगे तुरे। इहदे तो सिੱਖਿਆ सानू पता की मिलदी है, ਅਸੀਂ भी रब के नाम से बहुत कुछ गल्लां करते। कई बार तो साडा भुलेखा यह भी होंदा भी जिहड़ी कड़ाह प्रशादी देग बना के लैके आउंदे आ भी जिहड़ी थल्ले रखी जाती महाराज दे महाराज ने खानी होंदी, ये बड़ा बड़ा भुलेखा है साडा। गुरु साहब खाते नहीं, भोग नहीं लाउंदे, मैं डंके की जोड़ ते गल कहना, भोग नहीं लाउंदे। पता की है बाणी दे विच शब्द महाराज कहंदे भोगम ता रोगम, जिहड़ा भोग करदा है जिहड़ा खांदा है उहनूं रोग लगदा है। जेड़ा भोगदा है ना चीज नूं, जेड़ा खांदा है बंदा उहनूं रोग भी लगदे ने। भोगम तां रोगम, भोग तो बाद रोग लगदे। बंदा मिठा खाई जावे, मिठा खाई जावे शुगर हो जाए, नमक खाई जावे, तलियां चीज़ां खाई जावे बीपी हाई हो जाए,
बीमारियां ना उस तो बाद मिठा करके खाया कौड़ा उपजया स्वाद। बंदा स्वाद भी जवान के स्वाद भी जो खाता उसके तो बाद रोग पैदा होते हैं। जो बंदा भोगण वाला है, भोगण का अर्थ की है खाना, किसी चीज भोगण, ते जदों असीं खाने आ ते सानूं रोग भी लगते हैं। गुरबाणी कहती जो जो दिसे सो सो रोगी रोग रहत मेरा सतगुरु। गुरु रोगां तो रहत है, गुरु नूं रोग नहीं लगते। गुरु ही है जिहड़ा रोग तो रहत है, रब ही है जिहड़ा रोग तो रहत है। सारा संसार रोगी है, सारा संसार भोगी है। ये भोगी जिहड़ा वो रोगी भी है, इसलिए मेरा गुरु भोगदा नहीं है, ये पदार्थां नूं भोगदा नहीं। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੰਠ ਕਰਵਾਉਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਵਰਤਾਉਣ ਸਮੇਂ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਪਾ ਕੱਢ ਲੈ ਸਕਦੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜਾ ਕੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਿੰਘ ਵਾਸਤੇ गुरु भोग नहीं लाता। दर प्रवान शब्द विद्वानों ने ऐड किया है। आप जी के हजूर कड़ा प्रशादी देख भेटा की गई दर प्रवान जी कृपान फेरी जाती है ये प्रवानगी होती भी बरदात ये प्रतीक है। प्रवानगी दी जाती है कड़ा प्रशादी देख के विच कृपान भेंट करके कि ये हुण देख वरताउण दे लायक हो गई, ये लायक है भाई वरताउण दे। प्रवानगी है गुरु वालों माफ करना ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਉਹਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਰਾਜੇ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਖਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। गुरु दर से कृपान भेंट होती देव कृपान भेंट करके संगत नूं वरताई जाती। ताबिया बैठे सिख दा कपड़ा कढ़िया जाता। असीं तां भुलेखिਆਂ ਵਿੱਚ कई बारी क्यों ही कह देंगे भी महाराज खाते हैं। कई लोग ये भी दावा कर देते कि तुसीं देग बनाओ किलो दी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵੇਖੋ महाराज ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਦਾ weight ਘਟ ਜਾਏਗਾ। weight ਦਾ ਘਟੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਿਉਣਾ। ਖੈਰ सतगुरु सच्चा पातशाह महाराज ने उन्होंने भुलेखे दूर करके उन्होंने ये उपदेश दिता गुरबाणी का भी अपने भरम दूर करो, रब के नाम से इदां दे काम ना करो। इस तो अगे सतगुरु महाराज सच्चा पातशाह मदीने वाल उतरदे। मदीना तो 300 मील की दूरी ते है मक्के को, ये सफर 300 मील 20 दिनों के विच महाराज मदीने पहुंचते, करबला के मैदान में पहुंचते हैं जिथे हजरत मुहम्मद साहब के दोते हुसैन ने जिहड़ा आखिरी साह लिया वो करबला तो होंदे हुए गुजरते हुए सतगुरु महाराज वापस देश पंजाब में परतदे ते जदों सतगुरु महाराज देश पंजाब वालों आउंदे ने ना ते उस वक्त इस गल का ख्याल रखियो भाई लालो के कोल फिर कहते हैं आउंदे दूजी प्रचार पहली प्रचार फेरी ते महाराज भाई लालो के घर गए हुण तीजी प्रचार फेरी तो वापस आउंदे महाराज फिर भाई लालो के कोल ठहरदे। इस तो पहला मसला गल दा मैं थोड़ा जिक्र करदा समय नूं मुक्त रखदे हां। वली कधारी नाम का जिहड़ा व्यक्ति सी ਉਹਦੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ बड़ा पता चार चार मेरे खबरां फैलियां कि बड़ा खतरनाक वली कधारी। गुरु नानक पातशाह महाराज ने छोटी जी पहाड़ी के ऊपर रहता सी, लोगों तो वखरा रहता सी। महाराज गए तो मर्दाना जी कहते जाओ तो तू पानी लेके आओ। उन्हें चश्मा बनया सी तो उन्हें कब्जा किया सी, कहना मैं इथों पानी नहीं लैण देवांगा। महाराज मर्दाना जी को भेज दे जाओ पानी लैके आओ, ना कर दिंदा। फिर महाराज भेज दे, ना कर दिंदा। तीजी बारी भेज दिया, कहना जे तेरा गुरु एडा बलवान है तो आप क्यों नहीं पानी का चश्मा तैयार करदा। गुरु नानक पातशाह महाराज खोजी है बड़ी दूरदेशी वाले, उन्हें खोज करके समझ के विचार के पत्थर के हेठों पानी कटे
पत्थर चुक्या, क्योंकि उन्होंने जदों पहाड़ी एरिए के गुजर गए तो थोड़ा जा तुसीं टोआ पुटोगे तो पानी सुभाविक निकल आता। महाराज ने पानी कढ़िया, उन्होंने थावां ते खारा पानी ज्यादा सी। गरीब नवाज पातशाह जी ने खोजदियां मिठे पानी की भाल कर ली। ते जदों इस गल का पता बड़ी घधारी नूं लगा तो बड़ा क्रोधमान होया कि मेरे तो वध के कोई फकीर आ गया ऐसा जिन्हें लोगों को इकट्ठा कर लिया कि ये मिठा पानी कढ़ रहे। बड़ी घधारी ने गुस्से में आके पत्थर मारिया गुरु साहब वाल, पत्थर चलाया उन्हें गुरु साहब वाल। अज के समय दे विच जिहड़ा पत्थर उत्ते पिया होया ना, एक बेनती करदा जा, उस पत्थर के ऊपर पंजा लगा हुआ है। लोग जाते हैं भावें बड़ा ते भावें छोटा, सारे उस पंजे दे विच ऐ करके अपना पंजा ला के देखते हैं ते फिर काट ते ओनू उथे लिख के लाया होया कि ये वो पत्थर है जेड़ा पत्थर बड़ी घधारी ने गुरु नानक साहब वालों वेड़िया सी ते गुरु नानक साहब जी ने हाथ लाया ते पत्थर दे विच हत्थ लग गया। ये पत्थर सी एक मिट्टी का गोला नहीं सी। ध्यान नाल समझो, ये पंजा लगा कि महाराजा रणजीत सिंह ने अपने राज के दौरान वो पंजा खुदवाया, बहुत घाड़िया को पंजा बकायदा बनवाया, निशानी के तौर पर बनवाया गया, कोई खोजन वास्ते नहीं सी बनवाया। पता लग जाए कि इस पत्थर नूं बड़ी घधारी ने गुरु नानक साहब वालों रेड़िया सी ते गुरु नानक साहब ने अपने हाथों दे नाल पत्थर नूं रोक लिया सी। गुरु नानक साहब जी अज वर्गे बाबियां वर्गे नहीं सी, भोले भोले हाथ होणगे जिन्हां कदी काम ही नहीं कीता, जिन्हां नूं कदी काम ही नहीं पिया। गुरु नानक साहब का बौड़ देखदे सी, करतारपुर साहब की धरती ते खेती करदे सी, दोए वर्गे हाथ होणगे मेरे गुरु दे, बड़े कड़े हाथ होणगे। जेड़े पत्थर नूं बड़ी घधारी रेड़ सकदा है उहनूं गुरु रोक क्यों नहीं सकदा? जे आपां बड़ी घधारी की ताकत नूं वेखीए कि बड़ी घधारी ने धक के पत्थर रेड़िया, गुरु कोल भी इन्नी ताकत हैगी सी, शरीरक ताकत हैगी सी कि उहनूं रोकण दी, रोकिया। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਸਭ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾ ਖੁਦਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਯਾਦ ਰਵੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਪੱਥਰ ਚਲਾਇਆ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਪੱਥਰ। ਇਹ ਸਾਖੀ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਘਧਾਰੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੀਵੀ ਦਾ ਇਹ ਚਸ਼ਮੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਸੋਮੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਸੋਮੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੋਹਫੇ ਨੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਤਾਕਤ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਤੂੰ ਜਿਹਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ, ਦੂਜਾ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਨਾ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 10 ਕਿੱਲੇ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 20 ਕਿੱਲੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਵਰਤਦੇ, ਕਿੰਨੀ ਮਾਲਕੀ ਤੇ ਮਾਲਕ, ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਤੂੰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 20 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 400 ਵਿਗਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 250 ਵਿਗਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 200 ਵਿਗਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਬੈਠਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਆਸਣ ਹਮ ਬੈਠਦੇ ਕੀਤੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਆਉਣਗੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਖੁਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਰੱਬ। जिस बाणी का हंकार कौन करता है ਇਹਦਾ मालिक खुदा है। समझाया अपने हंकार को दूर कर, बड़ी माड़ी चीज है हंकार। गरीब नवाज पेंशन भाई लालू के कोल पहुंचते ना संकेत बेनती कर, लालू जी के कोल आते हैं, इधरों खबर मिल गई भी काबल तो बाबर चढ़ गया, बाबर चढ़ाई कर रहे हैं। साथ संगत एक बेनती करा, जदों गुरु नानक साहब महाराज इमराबाद पहुंचते हैं सैदपुर, भाई लालू के कोल से खबर मिल गई बाबर चढ़ाई करके आ रहा,
उस बाबर ने इन्हां लोकां दी वट कट करनी है, इन्हां लोकां दा धन पदार्थ लुटना है, इन्हां दा सारा जिन्ना कुछ माल सवाल सब कुछ लुट लेना। उन्हां लोकां नूं समझाया कि तगड़े हो। बाबर काबल को तुरिया है, उहदे नाल वड्डा लाहो लश्कर है, उहदे नाल बड़े बड़े जवान ने, बड़े बड़े जरनैल ने, बड़ी तगड़ी फौज लेके आ रहा है। कतलेआम करेगा, तुहाडा तैयार हो जाओ फौज का टकरा करने वास्ते। उन्हां पठाणा ने पता की कीता, कुरान कढ़ के रख लीता, पढ़न लग पे, पाठ करन लग पे कुरान। कहंदे ओदी फौज मुन्निया कर देंगे मंत्रा नूं। ओदी फौज जदों गाह बढ़ेगी अग लग जाएगी, ओनूं अगे नहीं बढ़ सकती। जिद्दां भारत की धरती ते जोशी कहंदे ने आ ਜਿਹੜੀਆਂ नाग पाते ना मोदरियां दे विच पा के दिंदे ने नाग भी आ लगे तेनू जदों तेरे ते कोई मुश्किल आउण लगी तिड़क जूगा पहला ही तेन पता लग जू। ते जे तिड़क गया फिर की कर लो भला जे कल्ला किते बैठा हो। आ जेड़े सुरक्षा कवच पाउंदे ना, जेड़ी बड़ी ऐड आउंदी टीवी चैनलां ते ये पाओ ते तुहाडी सुरक्षा रहे। फिर उन्होंने कहो भी बार्डर तो आर्मी बीएसएफ पीछे कर लो तो सुरक्षा कवच पा के पंडितां नूं उत्थे लै जाओ। कश्मीर में भाओ जितों पुत्रां दी लाशां होंदियां ने, रोज जवानां दी लाशां होंदियां, सुरक्षा कवच पा के गल विच ते कश्मीर दे बार्डर ते बिठा दिओ, बारामूला भेज दिओ इन्हां नूं कि जाओ उत्थे जिन्ने घुसपैठी आउंदे ने जां आतंकवादी आउंदे ने उन्हां दा करो हम मुकाबला भला। ये मावां दे पोतिया जिहड़े रफला हेठां ला के ते बर्फीले पहाड़ां दे उत्ते तुरे फिरदे। ये सुरक्षा कवच नहीं उत्थे काम करदा। मैं दस्सां तुहानूं सार्थक गल भावें औखी है सुननी पर है सच्चाई है। उत्थे सुरक्षा कवच नहीं, उत्थे मुंदरियां दे रंग नहीं काम करदे, उत्थे मावां दे पुत्तां दे शरीर काम करदे। ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਡੱਬਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸੋਰੇਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਸੀ ਭਾਰਤ ਤੇ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਮੰਤਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਵਾਲੇ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੱਤ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। मैं तो यह कह रहा कि कश्मीर के वो 16 पंडितां दा वफद जिहड़े पूरे भारत दे विच उच्च कोटि दे विद्वान सी, कश्मीर घाट सी पंडितां, पढ़े लिखे संस्कृत के माहर लोग जिहड़े सी कश्मीर विच रहिंदे सी। इहो कह लो कि जिवें अपने पंजाब के पढ़े लिखे लोग चंडीगढ़ जाके रहंदे हैं, वो कश्मीर विच रहिंदे सी। ते जदों औरंगजेब नूं पता लगा ना कि जिहड़े पढ़े लिखे लोग है, जदों मैं इन्हां नूं काबू विच कर लिया ते अनपढ़ां नूं तां करना कोई औखी गल नहीं है। ये धर्म के मोढ़ी ने जिहड़े धर्म का मोढ़ दसते हैं, जो ये काबू में आ गए बाकियां दी तां मुश्किल कोई नहीं। इस 16 पंडितां दा वफद भाई किरपा राम की अगवाई दे विच आनंदपुर साहब की धरती ते गुरु तेग बहादुर साहब जी के पैरां विच आके बैठा। की क्या उन्होंने आके, महाराज जुल्म हुंदा साडे ते, मंदिर ढहंदे जे, जनेऊ रखदे जे, साडा कतलेआम हो रहा है, साडे ते धक्का जुल्म हो रहा है। महाराज साडी को बाह नहीं पड़दा, साडी बाह फड़ो। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने बाह फड़ी, उन्हां तो क्या है ते गुरु साहब ये तो नहीं आख्या कि जाओ जाके वेदां दा पाठ कर लगो, जाओ जाके सिमरतियां पढ़ लगो, जाओ जाके शास्त्रां दा मूर्त कढण लगो। ये नहीं महाराज ने कहा। गरीब नवाज कहंदे जे औरंगजेब जुल्म करदा है ना, थोड़ी जी हिम्मत रखो, दा टकरा कर, तकड़े हो, तुहाडा साथ देवांगे असीं, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। औरंगजेब ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰੀਏ ਇਕੱਠੇ। ਇਧਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਕੇ ਸੈਦਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਰ ਚੜ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਾਬਰ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਪੜਨ ਲੱਗਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਦਾਂ ਕਿਤੇ ਫੌਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸੌਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ, इन्ना अरबां खरबां रुपया का खर्चा है बीएसएफ का, आर्मी का, बाउंड्री पे भाई हुई है, भारत ते पाकिस्तान की बाउंड्री लाइन पे बैठे हुए। की लोड़ है, एक दो पार्टी बिठा दो कि आप वेदां दा पाठ करी जाऊगा, आप बाणी दा पाठ करी जाऊगा, आप किसी होर ग्रंथ दा पाठ करी जाऊगा। पाकिस्तान वाले दे मूंह मोड़ जाने, तोपां दे विच कोई आसरा ही नहीं रहना चलण दा, आपे खत्म हो जाने, मंत्रां ने खत्म हो जाने। साध संगत मंत्रां दे नाल कोई भी खत्म नहीं हुंदा ते ना किसी नूं कीता जा सकदा है। सैदपुर दे लोग मंत्रां दा
धोखा देने लगे, बाबा असी बाबर की फौज को अन्या कर दिया। महाराज कहते ये समझ के लगता। भाई लालो के घर पहुंचे, कहते लालो इन्होंने लोगों को मैं समझाया है कि देखो बाबर चढ़ के आ रहा, खबर आ गई ने काबल तो तैयारी करके आया। काबल की तैयारी का जिक्र गुरु नानक साहब जी ने किया तो उसकी फौज ने पता किया क्या, पाप की जान, पाप की जान आख्या। महाराज कहते जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसरा करी ज्ञान वे लालो, पाप की जान ने काबलों धाया, धाया दर्द दौड़िया आ रहा, भजा आ रहा, रवा रवी तुरया आ रहा। पाप की जान ने काबलों धाया, जोरी मंगे दान वे लालो, उन्हें धक्के ना अपनी बगली में दान पाना, धक्के ना अपने खबर में दान पाना। इन्हां जोगी व्यक्ति का मालिक है बाबर। महाराज ने अखी देखा वो माहौल, सतगुरु ने अखी देखा वो साका, जो कुछ वापरिया उथे, जो कुछ होया उसका जिक्र गुरु नानक साहब ने अपनी बाणी च भी किया। जिन सिर सोहन पट्टियां मांगी पाए संदूर, जिन्हां ने अपने बालों दी पट्टियां बनाईयां सी, पठानी औरतां मां के संदूर पाए सी। जिन सिर सोहन पट्टियां मांगी पाए संदूर, से सिर काती मुंदियां गल विच आवे धूड़। आ हालत बन गई, काती मुंदियां कैंची दे नाल उन्हां दे बेबद किया गया, उन्हां दियां केस कतल कर दिते गए, कट दिते गए। महला अंदर होंदियां हुण बैन ना बैन हदूर, जेड़ियां उच्चे उच्चे आसमान छूह दे महल अटारियां च रहिंदियां सी, उन्हां नूं खुले आसमान दे विच हथ पैर बन के बिठाया होया। जिन्हां ने मणा हुई सोना अपने महिला विच रखिया सी, अज उन्हां दे गल विच रस्सियां पाईयां होईयां, जेड़ियां किते सोने दे घंटे गल विच छोड़दे सी। ये क्यों होया? एक गल का ध्यान रखियो, भारत की धरती के हमले पता क्यों होंदे सी बार बार? चाहे कोई अफगानी होवे, चाहे कोई दुरानी होवे, चाहे कोई नादर होवे, चाहे कोई होर होवे, चाहे गोरा अंग्रेज होवे, भारत की धरती वालों सारे इस करके मुंह करते सी क्योंकि इतने मंदिरों के भी मणा हुई क्वांटल हुई सोना लगा सी। कल जिक्र किया सी ना महमूद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर विचों मूर्ति तोड़ी 7.5 फुट की, वो तोड़ के सोने की मूर्ति लै गया मक्के काबे। 2 टोटे ने गजनी भेज दिते, 2 काबे भेज दिते। क्यों? इस करके जिहते हमला करते सी कि इत्थे धन पदार्थ बहुत सी लोगों के कोल, धन पदार्थ भी इन्ना सी, लोग ऐशो आराम दे विच जिंदगी जिउंदे सी। लोग इस गल नूं ध्यान ही नहीं सी रखदे कि साडे ते मुसीबत भी आ पवे। जे साडे घर विच धन होवे ते साडे घर च शाकर भी होना चाहिए भी ये धन नूं किवें संभालना। जे साडे कोल गुरबाणी दी विचार है तो महाराज ने सानू हत्थ विच तलवार भी फड़ा दित्ती कि कला विचार ते ना टिकिया रहे, तलवार भी होनी चाहिए तेरे कोल। जे गुरु नानक पातशाह जी ने रबाब दीयां तारां छेड़ियां ते कलगीधर पातशाह ने नगारा भी टका दिता। गौर करो इन्हां गल्लां ते, ये बड़ियां समझण वालियां गल्लां ने। खैर गुरु साहब जी ने भाई लालो नूं आके आख्या ना कतलेआम होना, बड़ा कुछ होना। वो सच शब्द विच बयान किया, जिन सिर सोहन पट्टियां मांगी पाए संदूर, से सिर काती मुंदियां गल विच आवे धूड़, महला अंदर होंदियां हुण बैठ ना बैठ हदूर। आदेश बाबा आदेश। ऐसे हालात ऐसे हालात में वेख के गुरु साहब जी ने ये 4 शब्द जिहड़े ने ना गुरबाणी दे विच दर्ज है, गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच उस हमले का जिक्र करते। तो महाराज ने फिर लोगों को समझाया इतों तक कि बाबर की फौज जिहड़ी सी उन्हें रज के कतलेआम किया ते महाराज ने अखी वेख्या माहौल। फिर बाबर ने जिहड़े मर गए, जिहड़े बच गए, उन्हां नूं कैद किया, बंदी बना लिया। जेड़े मर गए लोग जिन्हां दा कतल कर दिता, दे साड़ फूक दिते, बढ़ के सुट दिते। जेड़े बच गए उन्होंने बंदी बना लिया। उन्हां बंदियां दे विच गुरु नानक ते भाई मरदाना जी भी बंदी बना लिया। गुरु नानक पातशाह जी जेल होई, आसी बंदी छोड़ मनाउने ना। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ग्वालियर के किले विच आए, गुरु नानक भी बंदी छोड़ सी। ये क्यों नहीं दिन मनाते? गुरु तेग बहादुर साहब जी दियां 4 गिरफ्तारियां हुई, वो क्यों नहीं बंदी छोड़ बनाते?
सरदार महेंद्र सिंह जोश की किताब पढ़ के देखो, कमाल की हर गिरफ्तारी का जिक्र किया। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने प्रचार फेरियां की, गुरु साहब को गिरफ्तार किया जाता रहा औरंगजेब के हुक्म नाल। वो जदों रिहा होते हैं उन्होंने तक कोई बंदी छोड़ दिवस नहीं बनाया जाता। चलो मैं इस विषय की गल बाद में किधरे करांगा, मैं जी बेनती कर रहा सी इहनूं ध्यान नाल समझियो। महाराज गुरु नानक साहब जी नूं ते भाई मर्दाना जी नूं बंदी बनाया। ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਚੱਕੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਨਿਰਬਲ ਲੋਕ, ਸੈਂਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਢਾਸ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਸ ਦਿੱਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤਾਕਤ ਮਿਲੀ ਉੱਥੇ ਸਰੀਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬਾਣੀ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬਾਣੀ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਬਾਹਰ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਾਬਰ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਚੱਕੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੀਸਿਆ ਜਾਣਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਆਪੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਬਾਬਰ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਹੈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲਾ ਬੜੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਲਾਮ? ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਉਸਤਤ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਸਤਤ, ਰੱਬ ਦੀ ਉਸਤਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਰ ਵੀ ਮੋਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਰ ਤੂੰ ਜਾਵਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਖੁੱਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰਦਾ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ किधरे भी मासा रता पूरा की गुजाइश नहीं छड़ते। महाराज गल कर दी, कहते तू जावर है, तू जुल्मी व्यक्ति का, तू पापी बंदा है, तू इस रब की बनाई मनुष्यता का कांड किया। ते महाराज ने जिथे बाबर को आख्या ना उसे मरण वालियां का भी जिक्र किया कि वो अपने कारणा करके मरे ने, क्योंकि जेडे लोग ऐश प्रस्ती को ही जिंदगी बना लेना उन्हां लोगों ते कोई ना कोई मुसीबत आण टक्कर दी। उन्हां जेडे लोग ऐश प्रस्ती को ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਖਾਓ ਪੀਓ ਤੇ ਐਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਖਾਓ ਪੀਓ ਤੇ ਐਸ਼ ਕਰੋ। ਐਸ਼ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਐਸ਼ ਮਸਤੀ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਓ ਪੀਓ ਬਸ। ਆਪਣਾ ਇਹੋ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ? ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਕਿਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿਤੇ ਐਸ਼ ਮਸਤੀ ਕਰ। प्राणी तू आया लाहा लैन लगा कित को पकड़े, सब भुगती चली रहन। महाराज कहते जीवन रूप रात नदी जाती तो तू होर कमा गुजरिया। तो खैर सतगुरु सच्चा पातशाह जी ने उस वक्त बाबर को जाबर कह के दरकारिया, तू जाबर, तू माड़ा किया, तू ठीक नहीं किया। ते बाबर ने गुरु साहब जी के सामने अपने गुनाह को स्वीकार किया। इथों मेरे गरीब नवाज पातशाह चल के करतारपुर वापस आते हैं। ते करतारपुर की धरती ते सतगुरु सच्चा पातशाह जिंदगी के आखिरी समय, आखिरी जेडे 18 साल जिंदगी के सतगुरु ने इत्थे गुजारे। करतारपुर की धरती खेती-बाड़ी का काम किया, नगे होया, पानी लाया, खूह चलाया, बौल नीके, पट्ठे वढ़ के पशुओं पाए, पशु चारे, सारे किसानी किते। गुरु नानक पातशाह महाराज ने याद कर लियो, किसानी की गल करन वालियो, जे किसानी का मोर्चा जितना तो गुरु नानक भुलना नहीं चाहिए। गुरु नानक के पर उपकार कदे विसरने नहीं चाहिए। आज बहुत गिनती साडी किसानी गुरु नानक के पर उपकारां नूं भुली जे माफ कर। खेती बाद निकल आई तो बाबा जी ने अरदास की सी तां निकल आई फसल पर। झोना है कि 80 मन निकल आया पहले का, बाबा जी तो अरदास कराई सी। गुरु नानक किथे गए? ऐसा ही तो बाबा जी ने बात गोली मार के दी सी, तां इदां होया, तां फसल साडी दुगनी हुई है। नहीं नहीं नहीं, ध्यान देने की लोड़ है, तेरी हिम्मत भी किते ना किते काम कर। गुरु नानक पातशाह जी के परोपकारां नूं चेते करे। सुल्तानपुर की धरती से गुरु साहब ने हाथी किरत की। इथों महाराज फिर छोटिया छोटिया हर रोज गतिविधियां करते रहते हैं। प्रचार सेंटर बनाया करतारपुर साहब।
फर्क नाल दो पिंड ने ते इत्थे जोगी लोग इकट्ठे हुए, बड़े लोग इकट्ठे हुए, जोगी लोग इकट्ठे हुए। उधरों बाबे ने भी चोला पहनिया, ओहो जे वस्त्र पहन ले। महाराज पहुंच गए शिवरात के मेले। भाई गुरदास कहते मेला सुन शिवरात का बाबा चल बटाले। बाबा भी बटाले पहुंच गया। बाबे को इहो जे कट चाहिए सी, बाबा तो दसना चाहता सी बाहर के भेद बाहर के कर्म कांड तुहाडा पालतारा नहीं कर सकते। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਰਮੀ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ। बड़े बड़े विद्वान सिजदा करते हैं गुरु साहब, कहते महाराज जे तुसी जगत में ना होते तो दुनिया का बनता साडा बनता। जोगी लोगों के घर में महाराज पहुंचे, उसे रास धारी एक पासे रासा पा रहे हैं, नाच कर रहे हैं। जोगी लोग लोगों को भला पा के लुट रहे हैं। एक पासे गुरु नानक साहब भी जा बैठे। गुरु साहब ने क्लास ला दी, संगत को उपदेश कर लग गए। जिन्हों जिन्हों चंगी लगती जाती गल बाबे भी संगत में बैठता जाता है। एक भी आ, दो भी आ, 10 भी आ, 50 भी आ, 200 400 500 बड़ा कट हो गया। जेड़े जोगी लोग सी उन्हां दा कट घटन लग पिया ते गुरु नानक दा वधन लग पिया। जोगियां दे अंदर तड़ पाई भी आ की बन गया भी एक नवा फकीर आया ने साडे गाह तोड़ ले सारे। गाह टकावांगे क्योंकि उन्हां दी गाह सी, पर गुरु नानक साहब दे रब दे फरिश्ते गुरु नानक पातशाह उपदेश कर रहे हैं। जोगियों के अंदर हलचल मची है। जोगी जिन्हां दे विच लोहा दीपा, चरपट, भंगरनाथ, ये जोगियों के नाम से जो सिद्ध गोष्ठ बाणी पढ़ोगे ना सारे नाम होते हैं। गोरखपूत लोहा दीपा बोले आ पंक्ति जी असीं पढ़ते ना, तीर्थ नहाइए सुख फल पाइए मैल ना लागे काई। गोरखपूत लोहा दीपा बोले जोग जुगत विद साई। ये पंक्ति पढ़ते हैं सिद्ध गोष्ठ चो, ते जदों असीं तीर्थां नूं जाना था ना, ट्राली दे विच पराली सुੱਟ के उत्ते गद्दा सुੱਟ के बैठे होने ने, ट्रैक्टर दे अगे लेके लाया था तीर्थ नहाइए बोलो सुख फल पाइए। ट्रक में गद्दे सुੱਟ के बैठे होते ते अगे बैनर लगा था तीर्थ नहाइए सुख फल पाइए। ਇੰਨੀ पंक्ति थोड़ी अर्थ करोगे। ये कौन कहता सी भला? गोरख दा पुत्र, गोरख दा चेला लोहा दीपा कहता सी। ये गल कहते सी कि महाराज गुरु नानक पातशाह सीधा तीर्थां ते नहाउने आ ते सुख फल की प्राप्ति वास्ते तुरे फिरदे। खैर जदों महाराज की संगत जिहड़ी बहुत बड़ी गिनती में इकट्ठी हो गई, पातशाह उपदेश कर रहे भाई गुरदास जिक्र कर दे। जोगियां ने इस गल की खुदश रखी भी ये बाबे ने तो सारे लोग इकट्ठे कर रहे। खादी खुश जोगीसरा गोष्ठ करन सबे उठ आई। गोष्ठ करने वास्ते आ गए भी चलो ये पीर ना विचार चर्चा करिए। सारे लोग इकट्ठे किए हुए। खादी खुश जोगीसरा गोष्ठ करन सबे उठ्या। पूछे जोगी भंगरनाथ, जोगी जिहड़ा भंगरनाथ सी आके पहला सवाल करदा, तू दुध विच क्यों कांजी पाई? कहंदे बाबा तू ते दुध विच कांजी पा के रख दित्ती, साडे सारी संगत खरेड़ के रख दित्ती है, तू अपने कोल इकट्ठे कर ले। नानक आके भंगरनाथ तेरी माओ कुचजी आई। माओ कुचजी है, माओ का अर्थ मां नहीं है, माओ का अर्थ मत। तेरी तो मत ही कुचजी है, तैनू की पता लगना? फिटिया चाटा दुध का हिड़किया मक्खन हाथ ना आई। ये तू वो गुरु नानक साहब जी सवाल करते थे, गुरु साहब को जवाब देते हैं कि तेरी तो माओ कुचजी, तेरी तो मत कुचजी, तैनू की समझ लगनी है? उसे विचार चर्चा के जोगियां ने गोडे टेके मारे, मथे टेके, मथे टकाए गुरु साहब ने कि तुसी मथे टकाउण दा ये बंदा भी अपनी पूजा करवाई। गुरु साहब ने उन्होंने विचार चर्चा के कराया, दसिया भी तुहाडे च कमियां ने, किते जरूर कमियां ने, आ कमियां लोगों के सामने नशर होंगियां होइयां। जोगियां ने गुरु साहब के हाथ जोड़े, महाराज गलती है साडी, असीं ते साडा गुरु नानक के सिख अज भी जोगियां के पीछे भजे फिरदे। मैं कल भी जिक्र किया से ना गिदड़ सिंगियां दे मगर भजे फिरदे। जिन्हां जोगियां नूं गुरु नानक साहब महाराज ने कान पाटे किया, जिन्हां नूं आखिया भी तुहाडे कान ते पड़वा ले, कन्नां ते मुंदरा ते पा रही ना, बाहर दे भेंट तां कर ले। जोग ना मुंदी मूंड मुंडाए, सिर बनाउण दे नाल, जड़ा रखण दे नाल, मुंदरा पाउण दे नाल जोग नहीं मिलदा।
ये गल गुरु नानक पातशाह अज भी कहते ने, गात्रा पाउण वालिया, चोड़ा पाउण वालिया, दमाला सजाउण वालिया, खंडे बाटे दी पौड़ लैण वालिया, ये ना समझी बाबे नानक दे जहाज विच बैठिया, जे तू बैठा ही अजे तू पार नहीं पार लगना ते तैनूं बाणी दा आसरा लैना पैना। तो खैर गुरु कृपा करे। गुरु नानक साहब महाराज जी जी अखीरली प्रचार फेरी, चौथी प्रचार फेरी है अचल बटाले, मुल्तान ਅਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਇਹਨਾਂ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਵੱਲ, ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੇਰੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਭਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਇਆ। ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦੌਰਾਨ 'ਚ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਨ ਸਵਾਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਲੜੀਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਛੀ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ, ਬੋਲਿਆ ਸਤ ਕਰਤਾਰ, 15 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰ। ਇਹ ਕਰਾਮਾਤੀ ਸਾਖੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਫਟ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੈਰਾਂ, ਕਿਰਤੀ ਹਿੰਮਤੀ ਸਨ, ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਨੋਰਥ ਸੀ ਸਤਿਆਰ ਦੀ ਕਾਢ ਕੱਢਣਾ, ਸਤਿਆਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ। ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਮਾਨਮਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮੋ ਸਿੱਤਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਐਸੇ ਦੀਨ दयाल सतगुरु का ਅਸੀਂ प्रकाश दिहाड़ा मना रहे हैं। जिनके दिन मनाते हैं उनकी बात भी माना करो। जिन्हां दे दिहाड़े मनाए जाण उन्हां दी बात मनना भी साडा फर्ज है। गुरु साहब के उपदेशां नूं जीवन च उसाईए, उन्हां दी बाणी नूं पढ़ के जीवन नूं सवारीए। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੱਚੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਕ ਦਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ